ठीक दिख हो गया? ओके, यू कैन टेस्ट इट। गणेशाय नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्यारे प्यारे भक्तजन, आप जो यहाँ उपस्थित हो, all of you present here. It was off. I'm sorry, my mic was off. So, divine love, light, healing, bliss, prosperity to each one of you, all of you, जो आप परिश्रम करके आज यहाँ पहुँचे हो, all of you who have taken out your time and effort to be present here despite weather getting cold. And no matter what, if your goal is to be here and attend satsanga in person, you would be here. सारे काम छोड़ के सत्संग अटेंड करना चाहिए. And each one of you online, welcome, अभिनंदन है. Heartfelt divine love, light, healing, bliss, prosperity to each one of you and your near and dear ones. We have missed few weeks to be present here at the temple for satsanga, but we continued the yajna from our kutir, and we were there online. So all those who are online barely ever miss the satsanga because they attend online also. So God bless each one of us to never miss our satsang. Even though we are connected with God every moment
through japa, through thoughts. मुख में राम नाम, हाथ में काम. Do your duties, do your chores and continue to do your japa, taking God's name, that you never deviate from anything. With this, we are very thankful and have gratitude towards the temple that at least besides other activities, they still take out time and have a slot for this Srimad Bhagavad Gita Satsang. Brahmanandam Paramasukhadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sadrisham Tattvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshi Bhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami Sadgurum Tam Namami Sadgurum Tam Namami. Adorations to the Divine Preceptor, who is the bliss of Brahman, the giver of supreme joy, the embodiment of pure consciousness, beyond the pairs of opposites, vast like the ether, infinite, eternal, beyond all modifications. To that divine Guru, we offer our adorations. Our humble Sashtang pranams at the holy lotus feet of our Pujya Gurudev, Pujya Sri Swami Jyotirmayananda Ji Maharaj of Miami, Florida, and our Param Gurudev, Pujya Sri Swami Sivananda Ji Maharaj of Divine Life Society, Rishikesh, India. Our Jagat Guru, our world teacher, Bhagwan Adi Shankaracharya Ji. Our humble Sashtang pranams, and to the entire lineage of Gurus, we bow down to you. We humbly pray that you continue to guide all devotees, all sadhakas, so that they can freely continue on their journey, on their जो उनका लक्ष्य है, the objective of self-realization, may it be treaded upon without any obstacles. May you continue to bless each aspirant. Our pranams to all Brahman Devata, Acharya Jis, Shastri Jis, and to saints of all religions, our humble pranams. As we sit as dust particles at the lotus feet of our Guru, we are instruments in His hands, and we impart whatever we receive to you from Guru to Guru and Guru to Guru Parampara. जो चलता आया है time and immemorial in Sanatan Dharma, that is what is passed on. There may be different ways of imparting, but all is about that one Brahman. Many names, many forms, but it reaches that one Brahman. With that faith, may we continue our dedication, our faith, and see that one God in all beings, सब में रमता है भगवान, वो तार से तार जुड़े हुए हैं हम, जैसे सूर्य की किरण, like the rays of the sun, we all belong to that one God. We are children of that one God, and may we see that God in everyone. Om, Om, Om. And today's activity, as per Gurudev's
Yoga quotations from the wisdom of Swami Jyotirmayananda Ji Maharaj. The attitude of devotion must penetrate every activity of man. Mukh mein Ram Naam, haath mein kaam. As you chant, keep doing your duties and keep chanting. It must continue to release the soul from the prison of complexes. आत्मा को ये बंदी घर से छुड़ाना है. And thus reveal the awe-inspiring possibilities. जब हम जप करते, काम करते करते जप करते रहते हैं, as we chant while working, suddenly it strikes, oh, I am chanting also. That is the moment, that is the awe moment. That मेरा तार वहाँ जुड़ा है, मेरा रोंगटे खड़े होते हैं. I am having goosebumps while saying this. Yes, it is true. That while you are digging your garden, while you are cooking, suddenly you will realize, mera man, my mind and my heart with every breath is chanting God's name. तो ऐसे our moment है. So, awe-inspiring possibilities of divine expansion, which eventually lead him on to the complete fulfillment of love in divine realization. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. अब हम भजन कीर्तन करते हैं. अपने भक्त अपने भक्ति को प्रभु के चरणों में डाले, गुरु के चरणों में डाले. ऐसे ही हमारा जीवन सफल होगा. मुक्ति भक्ति की दासी है. मुक्ति is the maid servant of bhakti, deep devotion. Only then. जय गणेश जय गणेश जय गणेश पाहि मां. श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश रक्ष मां. शरवण भव शरवण भव शरवण भव पाहि मां. कार्तिकेय 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 रक्ष मां. जय सरस्वती जय सरस्वती जय सरस्वती पाहि मां. श्री सरस्वती श्री सरस्वती श्री सरस्वती रक्ष मां. जय गुरु शिव गुरु हरि गुरु राम. जगत गुरु परम गुरु सद्गुरु शाम. ओम आदि गुरु अद्वैत गुरु आनंद गुरु ओम. चिद गुरु चिद घन गुरु चिन्मया गुरु ओम. जगत गुरु ओम गुरु सच्चिदानंदा. शंकराचार्य शिवानंद ज्योतिर्मयानंदा. ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. शिव 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 शिवाय नमः. ओम हर 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 नमः शिवाय. ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते रामचंद्राय. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. आंजनेया 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 पाहि मां. हनुमंता 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 रक्ष मां. ओम शक्ति ओम शक्ति पाहि मां. ब्रह्मा शक्ति विष्णु शक्ति शिव शक्ति रक्ष मां. आदि शक्ति महाशक्ति पराशक्ति पाहि मां. इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति रक्ष मां. गंगा रानी पाहि मां. भागीरथी 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 रक्ष मां. हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम. हरि ओम हरि ओम हरि 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 ओम. ओम शांति
शांति ओम 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 शांति वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हमारा दंडवत प्रणाम है उस ब्रह्मांडीय ईश्वरीय शक्ति को, हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज को, सब साधु संतों को, सब शास्त्रों को, ऋषियों मुनियों को, हमारे पवित्र ग्रंथों को और आप सब में विद्यमान परमेश्वर को। Our humble prostrations to the all-pervading Brahman, to our worshipful Guruji, Swami Jyotirmayanand Ji Maharaj, to all sages and saints, all the scriptures, all the religions, and to the divinity in each of you. आप सबका, we did that last week. आप सबको सादर स्वागत है. All of you are welcome to this Bhagavad Gita Satsang. With God's grace, divine grace, we are all here. Those listening online also, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद. तो we are on chapter number 9 of the Bhagavad Gita, halfway. 18 अध्याय का गीता रहता है, 18 chapters, and it has 701 total shlokas, 700 shlokas. So we'll start on to shloka number 20 today. Okay, all right. So the chapter number 9 is Raj Vidya Raj Guhya Yoga, which means it's more about the royal knowledge. ये एक समय पे सिर्फ राजाओं को दिया जाता था. Only kings were entitled to it. इतना गूढ़ ज्ञान था कि उससे पूरी प्रजा का कल्याण हो. Then over time it started getting diluted because राजा लोग खुद ही पतन करने लगे, वासनाओं में फंस गए, sense objects and all. So then in Bhagavad Gita, Arjuna got this ज्ञान from Lord Krishna. तो भगवान बताते हैं राज विद्या मतलब मेडिटेशन, ध्यान करना, और ये गुह्य है मतलब सीक्रेट है, क्योंकि हम सब इंसानी रूप में भटक जाते हैं. As human beings we get lost in the woods. संसार के जंगल में हम फंस जाते हैं और अपना मुख्य कार्य क्या करने आए थे इस धरती पे वो भूल जाते हैं. We forget why God has sent us to earth, and that is what Lord Krishna is trying to explain to Arjuna. So we will start from shloka number 20 from chapter number 9. तो भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, बोलते हैं त्रैविद्या माम सोपमः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गर्ति प्रार्थयन्ते ते पुण्यसा मासाद्य सुरेन्द्र लोकम अश्नन्ति दिव्य दिन्वी देव भोगान. Those who follow the ritualistic portion of the 3 Vedas and drink the Soma juice, with their minds sanctified by sacrifice, pray for the enjoyment of the heavenly worlds, and as a result of the meritorious deeds, they attain the heavenly kingdom of the Devas, where they enjoy celestial pleasures. तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं. वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर
स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। सो स्वर्ग ही जाते हैं, मुक्ति का बात यहाँ अभी नहीं है। तो ये बहुत गूढ़ श्लोक है, इसको समझना आवश्यक है, क्योंकि every shloka is very deep but some have more depth than others, because यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं कि जो इतना पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं संसार में, लेकिन जिनको ये ज्ञान नहीं है कि हमें मुक्ति चाहिए, मुक्ति, they don't ask for liberation, they are just praying to God for material things, for heavens also. संसार में भी हमें अच्छा अच्छा भोजन मिले, अच्छा मकान मिले, अच्छे बच्चे हों, all good things they want, which they also get, and then they are doing all these good deeds so they can go to heaven. So भगवान यहाँ बताते हैं कि ये तीनों वेदों का ज्ञान रखते हैं। अच्छा, 3 वेद क्यों? वेद तो 4 हैं नॉर्मली हमारे वेदस में, तो भगवान ने 3 ही क्यों बोले यहाँ पर? तो नॉर्मली जब हमारा वैदिक धर्म है, हमारा धर्म कौन है? वैदिक। वी कम फ्रॉम सनातन धर्म। हिंदुइज्म तो बहुत देर बाद ये टर्म निकला है, हम हिंदू इंडस वैली से सब आया है, वो सब ठीक है। वास्तव में हम लोग सनातन धर्मी हैं। इन रियलिटी वी आर, सनातन मीन्स टाइमलेस, जिसका कोई समय नहीं है। धर्म मतलब जो राइचियसनेस, जो अच्छा कार्य होता है भगवान की ओर जो लेके जाता है, दैट इज व्हाट सनातन धर्म मीन्स। एंड एट दैट टाइम द सेजेस, इसका कोई एक फाउंडर नहीं है, हमारे धर्म का एक फाउंडर नहीं है। बाकी सब धर्मों में एक ही फाउंडर है। क्रिश्चियनिटी जीसस ने बनाई, वहां से मुल्ला को उन्होंने, मौलाना जी ने, और अल्लाह, हर रिलीजन में देयर हैज बीन अ फाउंडर, बट नॉट हियर। व्हाई नॉट? क्यों नहीं? क्योंकि ये जो वेदस हैं, जो ये शक्ति है, ये आकाश में सर्वत्र फैली हुई है, और ये जब अनुभूति होती है मेडिटेशन के थ्रू, दे वुड गेट रेवलेशंस। जैसे आविष्कार, साइंटिस्ट लोग आविष्कार करते हैं ना, ग्रेविटी को ढूंढ लिया, इसको ढूंढ लिया, नैनो टेक्नोलॉजी निकाल लिया। ऑल दे आर डूइंग इज जस्ट ओपनिंग अप द लेयर्स ऑफ द कॉस्मोस, ऑलरेडी देयर। तो ग्रेविटी तो कब से थी, लेकिन न्यूटन, एप्पल जो है, न्यूटन के सिर पे गिरा तो उसने कहा लेट मी फाइंड आउट व्हाट इट इज, एंड देन ही फाउंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी। बट ग्रेविटी ऑलवेज एग्जिस्टेड। सेब तो कब से गिर रहे थे ऊपर से नीचे। तो ये भगवान की कुदरत है। तो वेदस यहां से निकलते हैं। तो शुरू में वेदस असंख्य थे, देवर काउंटलेस वेदस, यू कुड नॉट, देयर इज नो नंबर। देन लेटर ऑन पीपल से देवर 100,000 वेदस, दिस दैट, बट वेद व्यास जी मेड इट इनटू 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सो यहां पर भगवान कृष्ण 3 क्यों बताते हैं? क्योंकि यही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये 3 वेदस क्या करते हैं? आपको भगवान से मिलाते हैं। दे शो यू द वेज टू गॉड, कि कैसे पूजा करो, कैसे ध्यान करो, कैसे तप करो, कैसे यज्ञ करो। और जो चौथा वेद यहां पर भगवान ने क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो आपको संसार में जीना सिखाता है। He teaches you how to be successful, which you are already doing. So God does not want us to get, God is trying to do what? To take you out of the world process. आपको मुक्ति के मार्ग पर ले जाने के लिए वो बताते हैं। तो इसका यही भेद है कि 3 वेदों का ज्ञान रखने वाले, सोमरस का पान करने वाले, सोमरस मतलब जो इंद्र पीते हैं। इन द हेवंस द सेंस ऑब्जेक्ट्स आर मच मोर डिटेल्ड। जो आप लोग देखते हैं यहां से मिलियन बिलियन टाइम्स ज्यादा, क्योंकि हमको शरीर की आवश्यकता पड़ती है, वहां पर सूक्ष्म शरीर हो जाता है, विच मीन्स यू कैन स्मेल एंड द स्मेल बिकम्स वेरी प्रोफाउंड। हमारी सेंसेस लिमिटेड हैं। एक कुत्ता हमसे अच्छा सूंघता है, isn't it? A dog can smell much more. A eagle can see much better than us. So if the senses change, you will change. So therefore ये मिथ्या जगत को परे हटकर, और ऐसे ही इससे बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा सेंस ऑब्जेक्ट्स फाइनाइट होती जाती हैं स्वर्गलोक में, जिसका राजा इंद्र है। आप जानते ही हैं, यू सी सो मेनी ऑफ दोज सीरियल्स शोइंग, है ना। तो जो सोमरस का वहां काम करते हैं, पापों से मुक्त होकर यजन द्वारा मेरी पूजन करते हुए स्वर्गलोक के लिए प्रार्थना करते हैं। दे से ओ गॉड प्लीज सेंड अस टू हेवन सो वी कैन हैव ऑल दैट। एंड देयर आर डिटेल्ड पूजास, डिटेल्ड वेज, उसको पंचाग्नि यज्ञ बोलते हैं, वो सब लोग करते हैं। लॉट ऑफ पीपल डू दैट ऑल्सो। तो वो भगवान बताते हैं वहां पर वो दिव्य सुखों को भोग करते हैं।
दिव्य मीन्स डिवाइन सुख, वो इतना ज्यादा सुख होता है कि हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये भगवत गीता बताती है। गीता टेल्स यू, एंड यू ऑल्सो सी सो मेनी ऑफ दोज सीरियल्स एटसेट्रा, यू नो, कि क्या क्या वहां देवलोक में होता है, मीनिंग मच बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। सो वहां पर जो आपने तप किया है, whatever you have done, you have earned it. अगर कोई पूजा नहीं किया, कुछ मंदिर में सेवा नहीं किया, कुछ नहीं किया और तप भी नहीं किया, तो स्वर्ग कहाँ मिलेगा? You will not get heaven. Heaven is only for those people who are spiritual, who have done good things. But even later God will say, even heaven is limited. Don't just ask for heaven, because you should go higher than that. तो यहाँ पर कहते हैं भगवान कि ये जो है उच्चतर लोक से आकृष्ट होकर, मोहित होकर ये अनियंत्रित रूप से खींचे चले आते हैं। The sense objects pull you because the senses are thousands of times stronger than what you face here. यहाँ की सेंसेस हमसे नहीं कंट्रोल होती। कभी कभी इतना कुछ अच्छा देखते हो, यहाँ क्या क्या बन रहा है, सुगंधी अच्छी आ रही है, रूप अच्छा दिख रहा है, गंध अच्छा आ रहा है, we are attracted towards those. So when you go to the heaven in the subtle body form, those senses are profoundly greater. और वहां के सुख में हम अपनी विवेक शक्ति भूल जाते हैं, सम्यक बोध को खो देते हैं, which means we forget about what our true goal is, just like we forget about what our true goal is on earth also. धरती पर भी आकर हम भूल जाते हैं कि हमारा एक दिन एक्सपायरी होगा। फ्यूनरल होम्स में जाते हैं, we see so many dead people, but we think not for us, it's for him. We feel sad for a little while, then we forget all about it. Totally भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि माया ऐसी बनाई है भगवान ने। माया means illusion. What is illusion? What appears real but is not real. It is unreal. But you cannot say it's unreal because something is happening. You are going through pain, you are producing kids, you are having fun, you are having joyful and sorrowful circumstances also. So therefore the sages and saints say, Maya kya hai? Anivarchaniya hai. It is indescribable. Like a dream. When you dream, it is real. Whatever you see is real for you only. आपके लिए वो सत्य है जो आप देख रहे हो, because you are experiencing that. आपके अंदर सब कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे ही आंख खुलता है, everything is gone. Much in the same way here God is saying, people who are doing it are forgetting the key goal of their existence. तो वहां पर ये जो देवता लोग हैं, ये आपकी खूब सेवा करते हैं, दिव्य सेवा होती है, and they treat you like royalty if you have done the tapas. तो वो बोलते हैं, अरे आप आइए महाराज, आप यहाँ बैठिए, आपके लिए ये पुष्पक विमान आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. So whatever you have here is nothing compared to that. तो that is so high कि उससे हमारा ईगो, बड़े बड़े तपस्वियों का ईगो भी हिल जाता है, because they make you feel so good कि आइए आइए प्लीज, they make you feel like a VVIP. तो क्या होता है, that energy that you get, you like it so much that it is your full test. अगर आप पूर्ण रूप से तपस्वी नहीं है, पूर्ण रूप से आपने साधना शक्ति नहीं पकड़ के रखी है, तो आप निश्चित रूप से वहां पर फिसल जाएंगे, क्योंकि इंद्र के सुख हैं वहां पे। इंद्र का all these people give you all those things, so they therefore, and then not only that, दिव्यांगनाएं, beautiful damsels, अप्सराज, यहां से लाख गुना सुंदर अप्सराज वहां पे रहती हैं, नृत्य करती हैं, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजें। तो आप यहीं पर ही खो रहे हैं, तो जब स्वर्ग में पहुंचेंगे तब क्या हाल होगा। तो लेकिन भगवान बोलते हैं आपके संचित पुण्य हैं, यू हैव एक्यूमुलेटेड दोज थिंग्स बिकॉज यू हैव डन तपस्या on earth. So therefore even practically in this world also, you study, you become a doctor, then the rest of your life you enjoy. You don't study, you work in McDonald's the rest of your life, that's it. क्या करोगे और? तो ये जीवन के तथ्य हैं, यहां पर भी लागू होते हैं, ब्रह्मांड में भी लागू होते हैं। तो यहां पर जो आपने तपस्या कर लिया, whatever penance you have done here, you will get the rewards, no doubt. But there God says, ये तुम्हारे लिए अब दिव्य वाहन आ गए, दिव्य अप्सराएं आ गई, ये आ गया, वो आ गया, व्यसन। तो all these sense objects, God says, are not easy for an immature aspirant. अगर आप पक्के नहीं हैं तो आप निश्चित रूप से फिसलेंगे फिसलेंगे ही,
कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपने तपस्या अच्छा करा है, आपके पास एक अच्छा गुरु है, उसने अच्छा ज्ञान दिया है, गीता आपने अच्छे से पढ़ा है, तब आप नहीं फिसलोगे। क्यों नहीं फिसलोगे? क्योंकि अगर आपने कथा उपनिषद पढ़ लिया, यू नो व्हाट कथा उपनिषद इज? 5-year-old बॉय नचिकेता, 5-year-old boy saw his father giving away old cows to somebody, to the Brahmins. तो उसने अपने पिताजी को बोला, पिताजी ये तो पाप है, you are doing very wrong because you are giving old cows. ये तो उनके लिए कष्टदायक हो जाएंगी. This will cause pain to the old Brahmins. वो बेचारे कहाँ इस बूढ़ी गाय का ध्यान करेंगे? उनको तो दूध मिलना चाहिए, यंग गाय मिलनी चाहिए. So out of compassion, तो अपने पिताजी के सामने बोलने लगे कि अच्छा मुझे किसको दोगे? Who will you give me to? And his father got upset. Third time he said, who will you give me to? His father, जैसे गुस्से में बोलते हैं, मर जा. His father said, I give you to death. तो he literally took it. He says, okay, आपने बता दिया कि हम मृत्यु लोक, तो वो मृत्यु लोक में पहुंच गए यमराज के पास. उस समय सत्यवादी थे और he was only 5 years old. सोचो 5 साल की आयु का बच्चा यहाँ किंडरगार्टन जाता है, वहां पर 5 साल का उनका आयु. एंड ही वेंट एंड वेटेड. तो यमराज को थोड़ी पता था ये आ जाएंगे, उनका समय भी नहीं हुआ था. ही वॉज नॉट डेस्टिन्ड टू गो देयर. जब हमारा समय होता है तभी तो मृत्यु होता है. तो जब उन्होंने ऐसे बोल दिया, वहां पर पहुंच गए. तो 3 दिन यमराज को लगे, क्योंकि यमराज और काम में बिजी थे, और लोगों का जिनका प्राण छूटना था वो सब उस काम में. तो 3 दिन बाद जब आए तो ही सॉ दिस यंग बॉय एंड ही सेज, ओह, एक तो ब्राह्मण का बेटा, ही वॉज अ ब्राह्मण सन. एंड देन सेकेंड ऑफ ऑल हंग्री. 3 दिन ना भूख ना प्यास, सब छोड़ के, ना भोजन मिला, कुछ भी नहीं, दरवाजे पर वेट कर रहे हैं. इतना दृढ़ निश्चय कि वापस नहीं जाएंगे. तो यमराज उसको बोले, हम आपको 3 वरदान देंगे. आई विल गिव यू 3 boons. यू बिकॉज यू वर हियर 3 nights विदाउट फूड एंड विदाउट वाटर. ये मुझसे पाप हुआ है, यमराज बोले. तो बोले अच्छा 3 या गुण में से, तो उसमें से पहला तो उन्होंने बोला, मेरे पिताजी दुखी नहीं हो जब मैं वापस जाऊं. One for the world. So he's thinking of his father. What would my father be thinking? Second thing he said, show me the Panchagni. ये पंचाग्नि जो बोलते हैं, people go to heaven. Is it really true? Then Yamraj says, yes, and I will show you. इसीलिए उस पंचाग्नि का नाम यमराज ने खुश होकर रखा नचिकेता अग्नि. He says from future we will call it नचिकेता. आपके नाम से ये अग्नि प्रसिद्ध होगा. तो पहला काम किसके लिए? संसार के लिए. दूसरा किसके लिए? स्वर्ग के लिए. और तीसरा वरदान जब बोले तो ही सेज थर्ड बून, आई हैव हर्ड सम पीपल से आत्मा होती है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं होती है, कुछ लोग बोलते हैं हमने देखा है लेकिन मरने के बाद तो कोई दिखता ही नहीं है. तो क्या है असली बात? क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? ओ धर्मराजा, यू नो इट. सो आई वॉन्ट टू हियर फ्रॉम यू डायरेक्टली, क्योंकि और किसी से सुनेंगे नहीं. अब आप ऑथेंटिक सोर्स हो, आप हमें बताओ. यमराज सुन के, जैसे हम बोलते हैं ना, बिविल्डर्ड, जौ उनका नीचे गिरा और देखते रहे. ये 5 साल का बच्चा इतने लोगों का गुरु. तो उसको बोले, महाराज आप ये कहां फंस गए आत्मा परमात्मा के चक्कर में? ये सो छोड़ो, ये देखो कितनी सुंदर सुंदर अप्सराएं. 10,000 साल का उम्र मांग लो, 10,000 years I give you, you will not die. Not only that, you will not have any sickness, nothing will happen to you, you will be strong and rich also. सब कुछ आपको दूंगा, जितना मर्जी धन ले लो, जितना खूब प्रलोभन दिए. The ones I'm trying to show you in this sloka, that's what you will also experience, those of you who are very pure spiritual people. So that level of प्रलोभन मतलब लालच means giving something so this boy can change his mind. But the boy was so determined. Those of you who are interested should read कथा उपनिषद, गूगल कर लेना, कथा उपनिषद. उसमें ये सब कथा और मंत्र सब कुछ है. तो लेकिन ये गीता क्या है? गीता उपनिषदों का सार है. It is the essence of all the Upanishads. Upanishad गाओ गोवधा गोपाल नंदना. सर्व उपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना. पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम. तो यही ये है. तो गीता, अगर आप इसको क्या बोलते हैं? गीता का सार, ये जो है गीता का सार है ये, कि सर्व उपनिषद गायें हैं. सब उपनिषद क्या हो गई? गायें. दोग्धा कौन हुए? गोपाल नंदना, कृष्णा. और किसको पिला रहे हैं? अर्जुन को. अर्जुन कौन है? आप और हम. समझ गए?
So it is for us that all this is stage is being set, Gita is being done. But Nachiketa said, nahi, kyonki you give me 10,000 years, after 10,000 years you will come and say time is up. Isn't it? यमराज बोला हाँ वो तो है, क्योंकि इतना ही लिमिट होगा, या जितना भी मैं तुम्हें दूंगा जो भी होगा कभी ना कभी तो खत्म होगा. तो बोले मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ये सब धन वैभव उम्र बड़ी उम्र ये सब, मुझे आत्मा का ज्ञान ही चाहिए. तो जब उसने बोला तो यमराज की आंखों में आंसू आए कि इतना छोटा बच्चा तो इसीलिए इतना बड़ा ज्ञान मांग रहा है. और उन्होंने फिर दिया, उन्होंने बोला तुम कई लोगों के गुरु बनोगे, यू विल बी अ टीचर फॉर मेनी, बिकॉज ऑलरेडी यू आर अ टीचर, सच अ हाई स्टेट. तो अभी तक हम नचिकेता का ये उदाहरण लेकर ये उपनिषद के थ्रू अलग अलग कितना बड़ा उनका सिद्ध थे. सिद्ध मतलब एट सच अ यंग एज ही ओनली वांटेड द आत्मज्ञान. तो यही गीता भी आपको सिखाती है कि कोई प्रलोभन में नहीं फंसना. हम क्या करते हैं, ये वाला काम हो जाएगा तो सत्यनारायण का पूजा करेंगे, वरना नहीं करेंगे, होगा तब करेंगे. तो डील बन गया भगवान से, भगवान ये करवा दो, तो वो भगवान करवाते भी है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करवाते. ही विल गिव यू व्हाट यू वांट, बट यू हैव लिमिटेड योरसेल्फ. This is the meaning of this shloka, that it's okay for worldly things, you should do it, but don't get entangled just in that. ये ज्ञान गीता का बहुत इंपॉर्टेंट है. इसीलिए इसको भगवान समझाते हैं कि देखो इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, our senses are very strong. No matter how pure we may appear, no matter how many साधना we may do, yet this is like coal, जहां कोयले की काठरी में कहीं ना कोई कालक लगेगी ही. You will get something or the other. Nobody is totally pure or taintless. We all have committed some fault somewhere, some time. तो इसीलिए भगवान बताते हैं कि ये इंद्रियों का दमन करना बहुत कठिन है. और विश्वामित्र खुद बताते हैं. विश्वामित्र, such a big saint, sage, he tells Vashishth Muni, he says, look, I had done so much tapasya and then Menka came. I lost my control because she was entangling such a beautiful person. तो बोले कि मैं फिर मुग्ध हो गया और मेरी कई वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई. It is true. This is not a joke. इसीलिए भगवान कहते हैं एक एक कदम, आप जैसे सीढ़ी चढ़ते हो, एक एक कदम, every step you take, you are so careful, isn't it so? Because if you fall, you will break your legs. So therefore God says, as you progress in your spiritual journey, then you have to be very careful. तो ये दिव्य भोग जो हैं, ये आपको बता दिया मनुष्यों से भी परे हैं. We, just like you look at a pig sitting in dirt. Now this is, Upanishads में ये बताया गया है, so I'm sorry to use this comparison, but if you look at a pig in dirt, and with his little piglets, and it is so stinky and smelly, you can't even watch it, right? ऐसे ही हम प्रतीत होते हैं उन दिव्य लोक को. We look like that. Why? Because they have so much more luxury, so much more opulence. They can do things at demand. आंख बंद करो तो समुद्र का सागर बन जाता है, खीर का, जो भी चीज आपको चाहिए और जितना मर्जी खाओ. No limit to it. You will eat something, you will get diabetes, you will get some disease, you will get burping, you will throw it out. Human body is made like that, but they can continue to enjoy. So they look at us like that. So when we say give up the sense pleasures, give up these objects, ये मजाक नहीं है. ये सारी उम्र का तपस्या जब होगा तब ये फलता है. Then you will earn it, and then ये जो है ये इंद्रियां भोग की वस्तु बन जाती हैं. Therefore every scripture, whether it's Bhagavad Gita or Bhagavatam or Ramayana, Mahabharata, they all teach you the same thing कि sense objects को control करो. मतलब जो इंद्रियां हैं, मन की इंद्रियां, आंख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से चखना और शरीर से महसूस करना, isn't it? These 5 senses, that's all the things that this world can do. Look at God's plan. With only 5 things, He has binded the whole universe, isn't it? सब जगह, देवलोक में भी यही 5 वस्तुएं हैं. कहीं पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, यही 5 चीजें हैं, तत्व. These are called the 5 elements. Your body also is made up of these only, these 5.
Your bones are made up of earth, water, blood. Fire is your जठराग्नि, जहां से आपको भूख लगती है. That is why we are all slow cookers. 98.7% पे हमारा टेम्परेचर रहता है. थोड़ा भी ऊपर होता है, when it goes up we get sick, when it goes down we get low energy. So we have to, and then naval center. yeah. So then air, would we live even 2 minutes without air? No. And आकाश क्या है? जो आपको space देता है. All your organs are situated in their respective places because of that space. So when this goes, only the elements go. केवल elements, इसीलिए हम नदी में जाते हैं, सरवाते हैं, राखी लाते हैं. क्या है? What is all that? It is simply basically saying earth to earth, water to water, air to air, fire to fire, ether to ether. So आत्मा, जो आपकी आत्मा जिसको हम consciousness बोलते हैं, वो केवल भगवान के पास ही जाती है. तो For Katha Upanishad, I just want to add on. I know Taranji, Om Tat Sat, you are online. I still have to give you the balance of the recordings, and anyone, those who are present here and otherwise others, I have recorded Katha Upanishad in English fully. I can give it to you through WhatsApp, and you can listen at your own pace. So it is in English, Katha Upanishad, but I can only give it through WhatsApp because other software does not take it that long. So let me know, all of you online and present here. ठीक है. Hari Om. तो चलिए एक श्लोक और कर लें, one more shloka and then soon our time will be up. तो भगवान बोलते हैं यहाँ पर अगला अर्जुन को बता के कि be careful when you go to heaven or when you are on earth. What are you praying for? Are you praying for material things or are you praying for liberation? मुक्ति मांग रहे हो या वस्तुएं मांग रहे हो? और पैसा, मुरली वाले नंदलाल मेरी लॉटरी निकाल. क्या मांग रहे हो? लॉटरी मांग रहे हो या भगवान से मुक्ति मांग रहे हो? उसी हिसाब से आपका आगे का भी जर्नी बनता है ना. तो भगवान आगे बताते हैं, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते. With the exhaustion of their meritorious deeds. This is very interesting. I like this because people know only about heaven. मुझको स्वर्ग जाना है, नरक नहीं जाना, स्वर्ग जाना. लेकिन something beyond स्वर्ग. Your luck should be that, beyond heaven. That's what should be your objective. So with the exhaustion of their meritorious deeds, having enjoyed the celestial pleasures of the heavens, they return to the mortal world. धड़ाम से नीचे गिरना है. So thus the followers of the ritualistic portion of the Vedas, driven by their desires, continue to come and go, avagavan, through repeated embodiments. बस keep coming and going. वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं. इन प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए हैं. सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं. अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं. हरिओम. हरिओम तत्सत. तो भगवान यहाँ पर क्या स्पष्ट कर रहे हैं? गॉड इज क्लैरिफाइंग दैट यू गेट व्हाट यू प्रे फॉर. Your prayers will be answered. लेकिन आपकी मंशा क्या होनी चाहिए कि जब आप अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं और स्वर्ग के सुख भोग रहे हैं. We just discussed that in great detail in the last shloka.
कि what kind of heavenly pleasures are there, way beyond our comprehension, हम इस मानव शरीर में नहीं सोच सकते हैं, तो वो सब आपको प्राप्त होते हैं. जैसे आप यहाँ पर 7 स्टार होटल्स में, सबसे बड़ा होटल कौन सा होता है, 7 स्टार या जो भी है यहाँ पे ना, वही $800,000 अ नाइट आपसे लेंगे और आपको वहां ठहरा देंगे, है ना. और उसके बाद अगर आपके पास पैसा खत्म हो गया तब क्या करेंगे? भागो. तो प्यार किसको है, आपके लिए है या आपके पैसे के लिए है ना. दे ओनली आर रिस्पेक्टिंग योर वेल्थ एंड दे आर ट्रीटिंग यू लाइक रॉयल्टी, बट द मिनट योर मनी इज स्पेंट आउट, है ना. वही आपके साथ हेवन में भी होता है. द ओनली करेंसी यू आर यूजिंग इज योर एक्शंस, your punya, your reserves, bank balance. So you are basically doing all that here. You take all that bank balance up there and God is doing a debit transaction to your account every day. तो फिर सडनली क्या होता है, क्योंकि जितना जो जो पुण्य आप भोग रहे हो, जो जो आनंद आप ले रहे हो, मतलब बॉटम लाइन क्या, कि जैसे ही रिजर्व पे गाड़ी लगा, जैसे ही आपका ऑयल लाइट का सिग्नल आ गया, अब क्या होगा, क्या होगा, आपकी बात सब खत्म हो जाती है. यू स्टॉप टॉकिंग, यू आर इमीडिएटली वरीड, वेयर इज द नेक्स्ट गैस स्टेशन, आई हैव ओनली 20 more miles. तो वहां पर ये भी नहीं होता है. ऑल ऑफ अ सडन यू जस्ट डिसइंटीग्रेट, बिकॉज एज सून एज दैट इट हिट्स योर लेवल कि योर बैलेंस इज नाउ जीरो, जो जो सुख आपने प्राप्त करने थे कर लिए, वट एवर लग्जरीज यू वर गोइंग टू गेट, नाउ यू हैव देम, नाउ गो बैक एंड गेट अनदर अपॉर्चुनिटी. But people who have enjoyed that, उनको चस्का लग जाता है. चस्का, you know what chaska is? Addiction. They like it so much that they work again, they again build temples, they again do good things, and they go to heaven, they come back. So it becomes a return trip. जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं, जाते हैं, वही उसी में फंसते हैं. Like going, I like Switzerland, I like here. You go and come back and you've already seen it, but you want to go there again. Why? That is why, that's what they also do. तो भगवान कहते हैं ये सुख पुण्य खत्म होते हैं, they come back, then they reignite themselves, redo it, and they come to them also. तो देख, उन्हें कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं है. They don't have any. Swatantrata means freedom. Why do they say liberation is more important than heaven? Why? Because then you are perpetually free, no more birth and death. जन्म मरण का चक्र ही कट जाता है. क्यों कटना चाहिए? Some people say this life is so good. What's wrong with it? What is wrong with it is everything is painful in this world. Birth, आप 9 महीने गर्भ उपनिषद पढ़ लेना. He told you कथा उपनिषद, read गर्भ उपनिषद, meaning when your mother was pregnant, you were in her body, what you went through for 9 months or 270-80 days. What you went through has been very precisely explained. बहुत अच्छे से समझाया गया है कि क्या आपकी स्थिति होती है, how much pain you go through, what happens. There you remember your past memories. You pray to God, God, what is this? Please help me out. Take me out and I will be your devotee only. I will not do anything else. केवल आपका ध्यान करूंगा और आप ही के पास आऊंगा. ये वायदा हम भगवान से गर्भ में कर देते हैं. We tell him that, but as soon as we come out, what happens? छोटू आ गया, मुन्नू आ गया, खिलाओ, छोटा छोटा खिलौना दे के, then you say, this is mine, this is mine, this is mine. And a small 2-year-old boy will not give you his toy. He will say, this is mine. वहां से संसारी जीवन शुरू हो जाता है. He knows this is mine, that is yours. So this is what we do to ourselves. What do us do? All of us, when we come to Satsanga, to unlearn what we have learned. To be more magnanimous, to give to others, to donate, to be good, to do good, love all, serve all. Why? Because we are trying to say, okay, what we have learned is okay academically, it's okay financially, but this is not going to solve my problem of my soul. मेरी आत्मा का कल्याण इन चीजों से नहीं होगा. ये हम जान जाते हैं. तो भगवान भी यही बताते हैं. तो उन्हें कोई अपनी स्वतंत्रता नहीं है. We have no freedom. If you are only going to heaven, then you will have to redo it. And that's why they say, Bad bhagi manav tan pava, sab sur rishi muni grantha hi gawa. We are extremely fortunate even in this human body, because this is the only species, we as humans, हम केवल वही हैं
कि we can create karma, we can do karma yoga, we can connect to God. No other species can do that. जानवर नहीं कर सकते, animals cannot do it, plants cannot do it, gods cannot do it because they are so much, there are luxuries there. So they are all praying, if we become humans, we will do the right thing. हम अच्छा काम करेंगे ताकि हम अपना कल्याण कर लें. But only a fraction of them do it. When we come back to the human body, we forget about it. क्योंकि माया, it's nobody's fault. हम नहीं बोल रहे कि हम मूर्ख हैं या हमें पता नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने ग्रंथ नहीं पढ़े. We have read everything. But these are intellectual discussions, mind you. Intellectually, देखो शास्त्र का क्या मतलब होता है ये हम समझाएंगे, उसके बाद हम we will give a break to today's satsang. But शास्त्र means शासन त्रय. शास्त्र सुनते हैं ना, scriptures are known as shastras. Why do we call them shastras? Because that is, you rule the three worlds with them. Shashan Traya. Three worlds, heaven, earth and the nether worlds. इसके अंदर 14 भुवन बन जाते हैं, 14. But otherwise you look at it from a more mystical viewpoint, the three worlds are your body, your speech and your intellect. जब तक वो तीन अलाइन नहीं होंगे तब तक शासन त्रय नहीं है. अगर शास्त्र आपने सुना, you just heard the Gita and you forgot about it. Oh, it was very nice. Swamiji said some good things and it was very nice. Now what's cooked, what's for dinner, what's for lunch, what's happening in the politics, this, that, and you get lost in your world. So what did you do? You did one part properly. You heard. है ना? लेकिन what were the two other things missing? कि हमने अपने मन में नहीं उतारा और हाथों में नहीं लाए, एक्शन में नहीं आया. तो जब तो वो शास्त्र, वो सत्संग पूरा नहीं है. That is not a full satsang. Full satsang means when you, shastra reading means when it impacts all three aspects of your life. Physically, mentally and with your actions. Otherwise, it's only theoretical. So many people know losing weight is good for your health. How many can actually do it? You know, you read the story, you will say everything. But जब तक तुम करोगे नहीं, and when you do it, then you know कि कितना बड़ा. I always remind people, Himalayas on a map looks only 2 inches big. Himalayas on a map is only this much. नहीं, you say okay, you go here, काठमांडू जाओ, यहाँ से ये करो, नेपाल, यहाँ से कैलाश पहुँच जाओ, you 3 परिक्रमा करके वापस आ जाओ. When you do it, you know what's happening to your body, how much oxygen you have to breathe, how many heights you have to go, how many feet and all that. That's the real experience. यही फर्क है थ्योरी में और अपने जीवन में उतारने. तो ये भी theory also is important, isn't it? Map is important because you will know it will take me from here to here to here. These are the things I need to do. तो planning आपको वहां से मिलेगी, करना आपको है. So a guru's role, a teacher's role is to guide you, show you the way, but we are the ones who have to do it. Nobody else will do it. Therefore this is called, this is not academic knowledge. This is not a PhD or a doctor's program. This is Bhagavad Gita. You repeat the same thing again and again and again and again. Gadha Parinyaya, because then it keeps hitting you. One day you will say, okay, I got it, Swamiji. Now I got it. I was listening for so many times, it never hit me. जैसे आप वो लैंप पोस्ट को ठोकते हो ना, ढम 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 हैमर से, और एक और एंड में मार देते हो, क्योंकि now you know it is really strong. That is what we are trying to preach. जब हिला के देखते हैं कि मजबूत हो गया कि नहीं ना, नहीं हुआ, फिर मार. So there is nothing new. Do good, don't do bad, do good, get God. Spirituality is done, isn't it? That's it. But what more can we say? Now we teach you ways, methods, technologies, things, which philosophy, how. All that is additional. लेकिन ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः. That's it. Brahma is the reality. The world is an illusion. The jiva, you and me, are the same as God. So with this we conclude our satsang. I know our time is limited today. One little thing here, just want to add on, like spicing or icing over the cake. So many times we read and we get scared, so many things. Oh, I don't want to go there because it says this, it says that. So much research goes on. But पानी देख के हाँ, वो लगता बहुत गहरा है, डर लगता. लेकिन कभी कभी वो डर को मत सोचो, बस कूद जाओ.
ग्रंथ में भी ऐसे ही है, कूद जाओ उसमें। पढ़ना नहीं आता, नहीं कुछ नहीं, तो जस्ट लुक एट इट। अक्षर को देखने से ही बहुत शक्ति अंदर आता। और आप जब संत को देखते हैं तो जरूर आंख में देखिए। आई वॉन्ट टू टेल ईच वन ऑफ यू आर फ्यू हियर एंड जो सुन रहे हैं सबको ये ज्ञान नहीं मिलता। लुक इनटू द आईज, गुरु के आंख में डायरेक्ट देखिए, तब आपको शक्ति मिलेगा। ऐसे ही ग्रंथ को भी कुछ नहीं आता पढ़ने को, फिर भी एक एक अक्षर को देखिए और वो झलक दिखलाएगा आपको, जरूर सीख जाओगे। सो डोंट बी स्केर्ड, डोंट बी स्केर्ड ऑफ एनीथिंग। गहरा पानी में कूद जाओ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। वापस आओगे, गंगा माँ बाहर निकालती है। हाँ, तो वो निकालेगी। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। श्रद्धा विश्वास। ठीक है, तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। टुडे वी कंक्लूड द सत्संग ऑफ भगवद गीता, and next week again we will continue from where we left off. We will be here next week. The week after that we will not, because Diwali है उस दिन, तो लेकिन next week हम लोग यहाँ पर रहेंगे, तो आप लोग जरूर पधारिएगा और आगे हम ज्ञान यज्ञ को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम सब खड़े हो जाएं आदर के साथ। प्लीज राइज एंड वी विल डू भगवद गीता टुगेदर, गीता आरती एंड if there are seniors, we can see some seniors, please let them come first, do the aarti, and then kids with families, बाकी लोग बाद में। हरिओम। I think Pandit ji is getting ready for the aarti. कॉपी बनाना पड़ेगा, अभी नहीं है। I just read from here. You know, do you remember we had a full booklet, like 30 of them. हो गया? इनको पता होगा जरूर। मैं अपना वाला देती हूँ आपको। पंडित जी रेडी हैं? So beautiful. I want to show to everyone. Oh, beautiful. She was attending satsanga. Sorry, अपना नाम बोल दे बेटे। कमाया। कमाया पुरावत. And she was drawing this, attending. Beautiful, Lord Shiva. May Lord Shiva bless you. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Okay. Let us do Bhagavad Gita Aarti together. Hari Om Tat Sat. Jaya Bhagavad Gita. Ma Jaya Bhagavad Gita. हरिया कमल विहारिणी, हरिया कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी, कामासक्ति हरा, मैया कामासक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी, विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवद गीते। निश्चल भक्ति विधायिनी, निर्मल मलहारी, मैया निर्मल मलहारी। शरण रहस्य प्रदायिनी, शरण रहस्य प्रदायिनी, सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवद गीते। राग द्वेष विदारिणी, कारिणी मोद सदा, मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी, भव भय हारिणी तारिणी, परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद गीते। आसुर भाव विनाशिनी, नाशिनी तम रजनी,
मैया नाशिनी तम रजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद गीते, समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बाणी, मैया हरि मुख की बाणी, सकल शास्त्रों की स्वामिनी, सकल शास्त्रों की स्वामिनी, श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवद गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा की जय, मैया मातु कृपा की जय। हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजय। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते, मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, हरि कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यज्ञत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ॐ ब्रह्मर्पणं ब्रह्महवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं। ब्रह्म कर्म समाधिनः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः
प्राण अपान समायुक्ता पचामन्यं चतुर्विधं हरिः ओम तत्सत् ब्रह्मर्पणमस्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। We would like to thank the sponsors for today and every Sunday. There is generally a sponsor जो इतनी मेहनत से भोजन आपके लिए महाप्रसाद तैयार करते हैं. So Mahaprasad is waiting and I'm sorry I don't remember the name who's sponsoring today. But blessings to them from all of us, and we do enjoy the blessed prasad that we take with us to our kutir. So thank you. आप सब सुखी रहिए, मंगल रहिए और प्रसाद ले लीजिए प्लीज, एंड ऑल्सो गेट द ब्लेसिंग्स ऑफ भगवद गीता. गीता महारानी को अवश्य स्पर्श कर लें और आपका कल्याण हो, मंगल हो. आई एम वेरी थैंकफुल टू सो मेनी सीनियर्स, बेचारे इतना मेहनत से आते हैं यहाँ पर. कल्याण सबका हो, सबको सन्मति दो भगवान. हरि ओम तत्सत. हरि ओम. बेटे I'll make more copies of this now. हाँ, blessings बेटा. That's all. God bless you. Kartik, blessed. आप लोग बहुत धन कमा रहे हैं, असली धन कमा रहे हैं. ऐसे ही करते रहिए. जय श्री कृष्णा. जूली जी बंद कर दिया? हाँ. वो बंद कर दिया. हरि ओम.